नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑन माय लास्ट वीडियो। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पैसा। हाँ भाई, पैसा ही पैसा होगा। बट वेट, डोंट रोल योर आइज जस्ट येट। दिस इजंट योर टिपिकल बोरिंग मनी टॉक। वी आर गोइंग टू डाइव इनटू सम रियल जेम्स टुडे। कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो आपको अमीर बना सकते हैं। Sounds interesting, right? Today we're going to explore the ideas from a famous book called Rich Dad, Poor Dad. It's like a treasure map for becoming rich. And trust me, it's not just about having a fat bank balance. So, buckle up and get ready for a roller coaster ride through the world of money. Let's start by talking about the mastermind behind Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki. This guy isn't your typical suited up financial guru. He's more like that cool uncle jo aapko life advice deta hai jo actually makes sense. Kiyosaki grew up in Hawaii and he had an interesting childhood. He had two father figures in his life. One was his biological dad, who he calls his poor dad. The other was his best friend's dad, who he refers to as his rich dad. These two dads had very different approaches to money, और यही reason था Kiyosaki ने ये book लिखी. Rich Dad, Poor Dad isn't just another boring finance book filled with complicated jargon. It's more like a कहानी जो आपको पैसे के बारे में सिखाती है. Kiyosaki uses his experiences with his two dads to explain complex financial concepts in a simple way. Now, let's get to the juicy part. अमीर और गरीब लोगों के पैसे के बारे में सोचने का तरीका कितना अलग होता है. It's like comparing vada pav and pizza. Both are food, but oh boy, what a difference. रिच लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, वो अपने पैसों से काम करवाते हैं। They focus on building assets that generate income. गरीब लोग, on the other hand, अक्सर सिर्फ अपने बिल्स पे करने के लिए काम करते हैं। They're stuck in what Kiyosaki calls the rat race. हमेशा दौड़ते रहना, but never getting ahead. Another big difference is how they view risk. गरीब लोग अक्सर रिस्क को अवॉइड करते हैं। अमीर लोग इसे सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। They understand that calculated risks are necessary for big rewards. It's like that time I decided to start my YouTube channel. It was a risk, but look where it got me. Rich log financial education को भी महत्व देते हैं. They're always learning about money and investing. Let's talk about the two dads in Kiyosaki's life. उसके असली पिता, poor dad, highly educated थे और एक government official के रूप में काम करते थे. He believed in the traditional path. Study hard, get good grades, find a secure job. लगता है ना? That's what most of us are taught. On the other hand, the rich dad, his friend's father, का approach बिल्कुल अलग था. He didn't have a fancy degree, but he understood how money works. He owned businesses and invested in real estate. उन्होंने कियोसाकी को सिखाया कि wealth की असली की high paying job नहीं है, बल्कि assets own करना है जो income generate करते हैं. Poor dad अक्सर कहते थे, पैसे पेड़ पर नहीं उगते और हम अफोर्ड नहीं कर सकते. लेकिन रिच डैड पूछते थे, हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? सवाल में बस इसी छोटे से बदलाव से पॉसिबिलिटीज खुलती हैं, बंद नहीं होती। ये दोनों पिता पैसे और जीवन के प्रति दो अलग अलग नजरिए को दर्शाते हैं। सेक्शन 5, रिच किड्स मनी सीक्रेट्स। चलिए अब जानते हैं कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं। इट्स नॉट अबाउट गिविंग देम फैंसी कार्स और एक्सपेंसिव गैजेट्स। It's about teaching them how money really works. सबसे पहले अमीर माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पैसा एक टूल है, गोल नहीं. They emphasize that the purpose of money is to create more opportunities and freedom, not just to buy stuff. यह बच्चों को रोज मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाने जैसा है. रिच बच्चे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में भी कम उम्र में सीख जाते हैं. उन्हें सिखाया जाता है कि एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालते हैं, जबकि लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालते हैं. तो लेटेस्ट आईफोन खरीदने के बजाय they might invest in stocks और start a small business. एक और इम्पोर्टेंट लेसन जो अमीर बच्चे सीखते हैं वो है पैसिव इनकम की पावर. उन्हें ऐसे तरीके खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उन्हें सोते हुए भी पैसा मिले. सेक्शन 6, मनी मैनेजमेंट 101. चलिए अब बात करते हैं अपने पैसों को मैनेज करने की. यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप जो कमाते हैं उसे कैसे संभालते हैं. मनी मैनेजमेंट का पहला रूल, पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहां जा रहा है. अपने खर्चों पर नजर रखें. इट्स लाइक मेंटेनिंग अ स्कोर कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस.
अगला, बजट बनाना सीखें। इट्स नॉट एज बोरिंग एज इट साउंड्स, आई प्रॉमिस। इसे एक बड़ी पार्टी प्लान करने जैसा समझो। आपको यह जानना होगा कि आप खाने, सजावट और मनोरंजन पर कितना खर्च कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेविंग। भले ही यह एक छोटी सी राशि हो, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करें। सेक्शन 7, मेकिंग योर मनी वर्क फॉर यू। तो दोस्तों, अब यहां से मजा शुरू होता है। अपने पैसों से काम करवाना। इट्स लाइक हैविंग एन आर्मी ऑफ लिटिल रूपीज गोइंग आउट एंड ब्रिंगिंग बैक मोर रूपीज। लगता है जादू जैसा, है ना? इन्वेस्टिंग यहां की है, लेकिन चिंता मत करो, आपको शुरुआत करने के लिए वॉल स्ट्रीट का जादूगर होने की जरूरत नहीं है। सिंपल इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स और म्यूचुअल फंड्स। जैसे जैसे आप और सीखते हैं, आप स्टॉक्स, रियल एस्टेट एक्सप्लोर कर सकते हैं या अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। द आइडिया इज टू क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई। यह पैसे की दुनिया में हर फन मौला होने जैसा है। आपके पास एक जॉब, एक साइड हसल, कुछ इन्वेस्टमेंट्स और शायद एक यूट्यूब चैनल भी हो सकता है। विंक विंक। याद रखें, लक्ष्य उस मुकाम तक पहुंचने का है जहां आपका पैसा आपके काम करने से ज्यादा पैसा कमा रहा हो। सेक्शन 8, द पावर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। चलिए अब ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन। ये सिर्फ वॉल स्ट्रीट के उन सूटेड अप लोगों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, आप और मेरे सहित। फाइनेंशियल एजुकेशन एक नई भाषा सीखने जैसा है, पैसे की भाषा। ये आपको यह समझने में मदद करता है कि पैसा कैसे काम करता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसे कैसे रखा जाता है और इसे कैसे बढ़ाया जाता है। यह कॉन्सेप्ट्स को समझने और स्मार्ट डिसीजंस लेने के बारे में है। सबसे अच्छी बात, आपको इसके लिए वापस स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब वीडियोस, हिंट हिंट और यहां तक कि ऐसे ऐप्स भी जो आपको पैसे के बारे में सिखा सकते हैं। सेक्शन 9, बिल्डिंग वेल्थ मोर देन जस्ट अर्निंग। तो चलिए एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं, बहुत अधिक कमाई करना आपको ऑटोमेटिकली अमीर नहीं बनाता। हैरान करने वाला है ना? लेकिन यह सच है। बिल्डिंग वेल्थ सिर्फ मोटी तनख्वाह से कहीं बढ़कर है। वेल्थ बिल्डिंग को बिरयानी पकाने जैसा समझो। आपको सही इंग्रेडिएंट्स, आपकी इनकम, सही रेसिपी, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और सही कुकिंग टाइम, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। सिर्फ महंगे इंग्रेडिएंट्स को बर्तन में डाल देने से आपको स्वादिष्ट बिरयानी नहीं मिलेगी, और इसी तरह सिर्फ बहुत अधिक कमाई करने से आप अमीर नहीं बन जाएंगे। वेल्थ बिल्डिंग की आपकी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि सिर्फ आपकी इनकम पर। नेटवर्थ आपके पास जो है एसेट्स, और आप पर जो बकाया है लायबिलिटीज के बीच का अंतर है। यह क्रिकेट मैच के फाइनल स्कोर की तरह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने चौके और छक्के मारे अगर आप अपने सभी विकेट्स खो देते हैं। सेक्शन 10, सिक्योरिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो दोस्तों, अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में बात करते हैं। यह आपकी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए एक किला बनाने जैसा है। सबसे पहली बात, इमरजेंसी फंड। यह आपकी कार में एक अतिरिक्त टायर रखने जैसा है। आप आशा करते हैं कि आपको इसकी कभी आवश्यकता न पड़े, लेकिन जब आपको इसकी आवश्यकता होती है तो आप खुश होते हैं कि यह आपके पास है। अपने खर्चों का कम से कम 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाने का लक्ष्य रखें। यह आपको मानसिक शांति देगा और आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल शॉक से बचाएगा। आगे इंश्योरेंस के बारे में सोचें। मुझे पता है यह सबसे एक्साइटिंग टॉपिक नहीं है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आपके वेल्थ के किले पर लगे ताले की तरह है। वे आपकी और आपके प्रियजनों को फाइनेंशियल डिजास्टर से बचाते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में मत भूलना। सेक्शन 11, जॉइन द जर्नी टू प्रॉस्पेरिटी। तो लीजिए दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ कवर किया है। रिच माइंडसेट को समझने से लेकर पैसे मैनेज करने और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने तक। मुझे आशा है कि रिच डैड पुअर डैड की इन इनसाइट्स ने आपकी आंखें पैसे के बारे में सोचने के एक नए तरीके से खोली होंगी। याद रखें, अमीर बनना सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, या अमीर परिवार में पैदा होने की बात नहीं है। यह स्मार्ट चॉइसेस करने, लगातार सीखते रहने और सही माइंडसेट रखने के बारे में है।
यह एक जर्नी है और किसी भी जर्नी की तरह इसकी शुरुआत एक कदम से होती है। तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? हो सकता है कि यह आपके खर्चों को ट्रैक करना शुरू कर रहा हो, या इन्वेस्टिंग के बारे में और सीखना शुरू कर रहा हो, या एक साइड हसल शुरू करना हो। जो भी हो, इंपॉर्टेंट बात शुरू करने की है, और अभी क्यों नहीं शुरू करते?